پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے، یہ پی ڈی ایم کا وعدہ ہے کہ ہم پختونخوا کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. ہم پختونخوا کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف کمپنسیشن دیں گے مگر ان سے جو نہ ہو سکا، انہوں نے اب تک وہ آئی ڈی پیز جو آپریشن میں بے گھر ہوئے ان کا خیال نہیں رکھا گیا. یہ کس قسم کا سلوک ہے کہ جب جنگ لڑنے کے وقت ہوتا ہے تو یہاں کے عوام آپ کا شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، جان دینے تک تیار ہوتے ہیں، مگر آپریشن کے بعد جب کام کرنے کے وقت آتا ہے، جب یہاں کے عوام کے مسائل حل کرنے کے وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. میں ایک منٹ مریم شریف صاحبہ کے پاس کچھ خبر ہے وہ آپ کو سنائیں. میں مریم بی بی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ کے 2 منٹ بات کر کے پھر بلاول صاحب آپ سے بات کریں گے، چونکہ ان کی نانی مر گئی ہے تو اس لیے حاضری لگوانا چاہتی ہے. مریم بی بی. ټولو ملګرو له درخواست دی مهرباني وکړئ دا ځای خالی کړئ. مریم بی بی له لار ورکړئ، دا سټیج خالی کړئ جی. مریم بی بی راځي، دا ځای خالی کړئ، لار وکړئ. انجینئر صاحب ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. میرے پشاور کے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. میں آپ سے آج بات کرنا چاہتی تھی، آپ کو ملنے آئی تھی، لیکن ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ لندن میں میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے لندن میں، وہ موجود تھی ان کے پاس. تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آج آپ سے بات نہیں کر سکی. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری دادی جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں ان کے لیے دعا فرما دیجئے، اور میاں صاحب کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کر دیجئے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو علم ہے، میاں نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور مریم نواز صاحبہ نے آپ سے مختصر بات بھی کی. چیئرمین صاحب کی درخواست ہے کہ ہم مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کریں تاکہ اس کے بعد پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آپ سے خطاب کریں گے. تو تمام شرکا سے درخواست ہے کہ مرحومہ کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. بسم اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. اللهم اغفرها وارحمها ولا تجاوز عنها. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدته بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من الذنوب ونقه من الخطايا كما ينقى من الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جهنم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. اب میں درخواست کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. خون سر کی پنار دے رنگ د ذوالفقار دے تم سر کی پنار دے جلد بے وسیوں میں دنو بہار دے. ہم دہشت گردی کی بات کر رہے تھے اور کس طریقے سے یہاں کے عوام نے بے مثال قربانیاں دیے ہیں اور اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے عوام کو وہ کمپنسیشن دے, وہ فائدہ دے جو ان کا حق ہے. جو قبائلی علاقوں کا پختونخوا کے ساتھ شمولیت ہوئی تھی, یہ ایک تاریخی قدم تھا جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ جد و جہد کی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عدالت میں بھی گئی تھی کہ فاٹا کو, قبائلی علاقوں کو پختونخوا میں ضم کیا جائے, لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ کاغذی سطح پر تو ضم ہوا ہے مگر فاٹا کو, سابق قبائلی علاقوں کو اب بھی ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اب بھی باقی پاکستان کے عوام کے لیے وہ وہاں جانے کا اجازت نہیں لے سکتے. آج بھی لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج بھی ایک قانونی بلیک ہول, ایک یہ جو آپ کا انٹرنمنٹ سینٹرز ہے ان کا سلسلہ چل رہا ہے. جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جو کورونا میں فوت ہو چکا تھا, اس نے انٹرنمنٹ سینٹرز کے بارے میں بھی کہا تھا. عدالت کی طرف سے حکم بھی آیا تھا کہ ان انٹرنمنٹ سینٹرز کو پولیس کے حوالے کیا جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم نے وہ قدم نہیں اٹھایا. ہم جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس ملک میں اس قسم کے غیرت مند اور بہادر ججز بھی ہیں جن کے قلم سے انصاف لکھا جاتا ہے, جن میں ہمت ہے کہ وہ آمر کے خلاف بھی سزا دے. ہم چیف جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں. ساتھیوں, جو اس سلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کا معیشت کے ساتھ کیا ہے, یہاں کا معیشت کے ساتھ کیا ہے, وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تاریخی مہنگائی ہے, تاریخی غربت ہے, تاریخی بے روزگاری ہے. سلیکٹڈ کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے. ان کی وجہ سے, ان کی نالائکی کی وجہ سے پہلے چینی کا بحران ہوا, پھر آٹا کا بحران ہوا, پھر تیل کا بحران ہوا, اور اب آپ دیکھیں گیس کا بھی بحران ہوگا. ان کا نالائکی کا بوجھ بھی پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں, اپنا بجلی کے بل میں, اپنا گیس کے بل میں, اپنا کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں. آپ اس نالائق, نااہل اور سلیکٹڈ کی حکومت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, اور ان کا ظلم وہاں نہیں رکتا, ان کا ظلم وہاں نہیں رکتا. جو NFC ایوارڈ ہے, جو آپ کا وسائل پہ حق ہے, جو آپ پہ پیسہ کا شیئر ہے, باقی صوبوں کی طرح پختونخوا کا حصہ پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. پختونخوا کو ان کا صحیح شیئر نہیں دیا جا رہا ہے. FPR کا نالائکی کی وجہ سے 160 بلین روپیز پختونخوا کے بجٹ سے کم کیا گیا ہے.
पख्तूनख्वा के अवाम को नहीं दिया गया है। आप जरा सोचे 160 बिलियन रुपीस हम इसके साथ क्या क्या कर सकते थे। पेशावर में पेशावर के नौजवानों को कितना रोजगार दिलवा सकते थे, कितना तालीमी और सेहत के इदारा खड़ा कर सकते थे। मगर बाकी सूबों की तरह ये नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत आपके वसाइल पे डाका डाल रहे हैं। आपको अपना सही शेयर नहीं दिया जा रहा। ये वही लोग हैं, वही हुकूमत है जो सीपैक की ऑल्टरनेट रूट की बात करती थी। जब हुकूमत में नहीं थे तो पीपल्स पार्टी के साथ देते थे कि सीपैक तो पसमानदा इलाका के लिए है, यहाँ के गरीब अवाम को क्यों नहीं फायदा दिया जा रहा। लेकिन जब से वो हुकूमत में आए हैं, सीपैक का जो ऑल्टरनेटिव रूट है जो गिलगित से होके चित्रार और धीर तक और चक्कादारा तक पहुंच जाता है, उस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ के अवाम को उसका भी फायदा नहीं दिया जा रहा है। आपका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो पूरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस आप करते हो। अगर एक दिन में 90,000 बैरल्स प्रोड्यूस होते हैं तो पख्तूनख्वा उसमें 50,000 बैरल्स प्रोड्यूस करते हैं। मगर फिर भी आपको आपका हक नहीं दिया जाता, आपको अपना रॉयल्टी नहीं दिया जाता। वैसे ही जो आपका गैस प्रोडक्शन है वो भी आपका कंजम्पशन से ज्यादा है, मगर उसमें भी आपको अपना हिस्सा नहीं दिया जाता। हर जगह पे हर तरफ से यह नालायक हुकूमत आपके हक पे डाका डालता है। ये जालिम हुकूमत आपके जेब पे डाका डाल रहा है। आपको अपना वसाइल नहीं दिया जा रहा। खुद को आपके नुमाइंदे कहलवाते हैं, मगर अगर आपके नुमाइंदे हैं तो आपको आपका गैस की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका क्रूड ऑयल की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका हाइडल पावर का रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती? वो इसलिए कि ये पख्तूनख्वा के नुमाइंदे नहीं हैं, ये पख्तूनख्वा के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये अगर नुमाइंदे हैं तो अपने सिलेक्टर्स के नुमाइंदे हैं। अवाम को कुछ नहीं दिया जाता, अवाम का कोई मदद नहीं किया जाता। इन्होंने निजकारी के नाम पे पख्तूनख्वा में दुकान खोला है। यहाँ के तालीमी इदारे, यहाँ के सेहत के इदारे उन्हें पौने बेच रहे हैं। हम इनको ये इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के अवाम को इन सहूलत से महरूम रखा जाए। हमें तो कोविड का ताना देते हैं, कोरोना पे डराना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ हमारे जलसे रोकने के लिए, हमारा आपका एहतजाज रोकने के लिए उस वक्त उनको कोरोना याद आता है। लेकिन जब यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस के तनख्वाह में इजाफा की बात होती है तो तब वो कोविड भूल जाते हैं। जब रिस्क अलाउंस की बात होती है तो फिर कोरोना भूल जाते हैं। जब यहाँ के हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की बात आती है तो तब उनको कोविड भूल जाता है। वो अगर याद करते हैं तो सिर्फ पीडीएम के जलसे के दौरान याद करते हैं। हम जानते हैं कि हमें ना सिर्फ इस वबा का मुकाबला करना पड़ेगा, मगर इस गैर जमहूरी निजाम का भी मुकाबला करना पड़ेगा जो यहाँ के अवाम के हकूक पे डाका डालते हैं, जो वहाँ के अवाम को लावारिस छोड़ते हैं, जो यहाँ के अवाम पे जुल्म करते रहते हैं। इस सब कुछ के साथ साथ अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इस जालिम हुकूमत की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से आटा भी महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, आलू महंगा, पेट्रोल महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी। गरीब आदमी जाए तो कहां जाए? गरीब आदमी के लिए तो मुर्गी भी दूर की बात हो चुकी है, अब वो अंडा भी खरीद नहीं सकते हैं। पहले से चीना महंगा था, अब दवाइयों की कीमत में इतना इजाफा हो चुका है
कि जीना भी महंगा और मरना भी महंगा। ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों का नया पाकिस्तान। ये तो करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, ये तो करप्शन के बारे में सबसे ज्यादा चीखते थे, मगर अब सबको लग पता गया है कि ये तो सबसे करप्ट तरीन हुकूमत निकला है। अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि पीटीआई के दौर में, इमरान खान की दौर में करप्शन में इजाफा हुआ है, करप्शन में इजाफा हुआ है। करप्शन तो हुकूमत करती है, मगर नैब के निशाने पे सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन होती है। नैब का सियासी इंतकाम हो तो नैब के झूठे केसेस हो तो ऑपोजिशन उनको भुगत रहा है, मगर नैब को नजर नहीं आता, नैब को नजर नहीं आता कि यहां पेशावर में मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, मुल्क से सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, जिनके बसेस खुद ब खुद जल जाते हैं, जिनके पैसेंजर्स को बस को धक्का दे के चलाना पड़ता है, मगर ये नैब को नजर नहीं आता, नैब को नजर नहीं आता, नैब को नजर नहीं आता, नैब को नजर नहीं आता कि कैसे सिलाई मशीन से अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इमारतें खड़े हो रहे हैं। नैब को नजर नहीं आता कि मालम जब्बा में क्या क्या करप्शन किया गया है। नैब को नजर नहीं आता कि फॉरेन फंडिंग केस में कैसे बैरून मुल्क के लोग, भारत के वजीर, इजराइल के शहरी पीटीआई का फंडिंग करते रहे। नैब को नजर नहीं आता, नैब को नजर नहीं आता कि स्पेशल असिस्टेंट्स के पास, स्पेशल असिस्टेंट्स के साथ पनामा की जायदादें कैसे हुए, स्पेन में जायदादें कैसे आए, अमेरिका में जायदादें कैसे आए। नैब को नजर नहीं आता, नैब में वो हिम्मत नहीं है, नैब में वो हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सके कि पापा जॉन्स का एम्पायर एक स्पेशल असिस्टेंट ने पूरी दुनिया में कैसा खड़ा कर दिया है। मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं, जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा और अब हिसाब लेने का वक्त आएगा तो आप हिसाब लेंगे, आप हिसाब लेंगे, पख्तूनख्वा के अवाम हिसाब लेंगे, इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे, इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे। मगर इन कठपुतलियों के पीछे जो है उनसे भी आप हिसाब लेंगे। हम नैब से भी हिसाब लेंगे, हम नैब से भी हिसाब लेंगे। नैब का आईओ से लेके चेयरमैन तक हर ऑफिसर नैब ने, इन सब से हम पूछेंगे। और जब इनसे पूछा जाता है, जब आईओ से लेके चेयरमैन तक उनसे पूछा जाएगा कि आपके एसेट बियॉन्ड मीन्स क्या है, फिर पूरा मुल्क को लग पता चलेगा कि असल में करप्ट कौन है और करप्ट कौन थे। मगर साथियों, हम इस करप्शन का नासूर का खात्मा नहीं कर सकेंगे जब तक हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून नहीं होगा, हम सब के लिए एक कानून नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। जब तक सियासतदानों के लिए, जजेस के लिए और हाजी जनरल्स के लिए एक कानून नहीं होगा, एक अदालत नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। जब तक हम गुड करप्ट और बैड करप्ट खेलते ही रहेंगे, तब तक करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है, एहतसाब हम लेंगे। जब हिसाब हम लेंगे, फिर जवाब देने को तुम मगर कहां होंगे।
खरोखास से कमतर हो, खरोखास से कमतर हो, रास्ते के कंकर हो, जिसने राह रोकी है वो तुम्हारा आका है। हमने दिल में ठानी है, हमने दिल में ठानी है, राह साफ कर देंगे, तुम तो सिर्फ नौकर हो, तुमको माफ कर देंगे। इनका नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना, यहां में अपना नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना, पंजाब में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, बलूचिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, वफाक में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, और आज अब गिलगित बल्तिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत नाफिज करने में इस मुल्क के साथ क्या क्या किया गया है। अब ना अवाम आजाद है, ना सियासत आजाद है, ना अदालत आजाद है, ना सहाफत आजाद है, जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, इंसानी हकूक तो खत्म ही हो चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी में हमारे सबसे पुराना दोस्त भी हमें भूल चुके हैं, मईशत को तो तबाह कर चुके हैं। अब उनको अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा, अवाम का राय चलेगा, आपका राय चलेगा, ना पिंडी का राय चलेगा, ना अपारा का राय चलेगा। अगर फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क में हुक्मरानी कौन करेगी, पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क की मईशत कैसा चलेगी, और पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करेंगे कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसे चलेगी। साथियों, मैंने पूरा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करके आया हूं, चप्पा चप्पा का दौरा करके आया हूं, पीडीएम का मंशूर, पीडीएम का नजरिया गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक लेकर गया था, और जहां के धांधली की वजह से आपको वो सीटें नहीं दिए गए, मगर इनके हथकंडे के बावजूद, इनके धांधली के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमाते को मिले हैं और पीटीआई को शिकस्त मिली। सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमातों ने हासिल किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीडीएम की नजरिया के साथ दिया है, और धांधली के बाद जो उन पहाड़ों में एहतजाज शुरू हुआ है, सख्त सर्दी के मौसम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीडीएम की तारीख में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब आपका लॉन्ग मार्च में शाना बिशाना खड़े रहेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है कि वोट पे डाका ना मंजूर, वोट पे डाका, मेरा वोट पे डाका, तेरे वोट पे डाका, वोट पे डाका, वोट पे डाका, वोट पे डाका। पाकिस्तान जिंदाबाद।